See, in the last lecture, we have done about of course, in the last two lecture, we have done black body radiation and photoelectric effect, correct? So today I'll just starting with the new concept. New means this part of it, that is dual behavior of electromagnetic radiation. Dual behavior of electromagnetic radiation. Now we have seen that normally we know that the light travels continuously according to electromagnetic wave theory. Light travel continuously in the form of wave. We know that according to electromagnetic wave theory, light is emitted continuously, correct? According to wave theory of light, light is emitted continuously. But according to Planck's quantum theory, light has particle nature. According to Planck's quantum theory, light has a particle nature and it is emitted in the form of small packets of energy. Small packets of energy are called quanta. So this we have done in the last lectures. Of course, that means according to electromagnetic wave theory, light is emitted continuously, in the form of wave. Light is emitted continuously in the form of wave. But according to Planck's quantum theory, the light has a particle nature. And so it is emitted in the form of small packets of energy, and small packets of energy are called as a quanta, or it can be also called as a photon, or it can be a small packets of energy, packets of light energy are called as packets of light energy are called as a photon, correct? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोल रहा था कि light travels continuously in the form of the wave, whereas the Planck's quantum theory क्या बोल रही थी कि yes, light travels continuously but light is emitted in the form of small packets of energy. ऐसे मतलब लाइट कंटिन्यूसली जाएगा लेकिन जैसे स्मॉल कंटिन्यूस नहीं रहेगा, but in the form of small packets of energy, and small packets of energy are called as a quanta. Quanta मतलब small packet of energy are called as a quanta. और अगर इन केस ऑफ लाइट बात कर रहे हो, मतलब अगर सनलाइट है या कोई भी लाइट है, तो लाइट के केस में वो पैकेट्स को आप क्या बोल सकते हो? स्मॉल पैकेट्स ऑफ कॉल्ड एज द फोटोन. Okay, now here we'll say here we can say the interference and diffraction of light, मतलब interference of light and diffraction of light, interference and diffraction of light were explained
by considering wave nature of light. मतलब अगर हम लोगों ने लाइट को वेव कंसिडर कर दिया तो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं और कर दिया है. आप फिजिक्स में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ाई करोगे, आपको ज्यादा इसके बारे में मालूम रहेगा. बट हमें यहाँ पे क्या बोलना है कि अगर हमने लाइट ऐसा एज्यूम कर दिया कि लाइट हैज अ वेव नेचर, then we can explain which concept: interference of light and diffraction of the light. And black body radiation and photoelectric effect were explained by considering particle nature of light. मतलब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये कंसेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो कंसेप्ट है ये किससे एक्सप्लेन कर सके हम लोग? बाय कंसीडरिंग व्हाट? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. इसका मतलब लाइट हैज अ वेव नेचर एज वेल एज light has a particle nature. So therefore we say that therefore we can say that light has wave nature as well as particle nature, that is light has dual nature. Okay, मतलब some concept were explained by considering light as a wave, some concept were explained by considering light as a particle, and therefore light has a, ध्यान में रखना कि हमारे पास जो सनलाइट है या कोई भी लाइट मतलब हॉट लाइट, लाइट फ्रॉम द बल्ब, लाइट फ्रॉम द फिलामेंट, लाइट फ्रॉम द ट्यूबलाइट, जो लाइट है उसको डबल ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल मतलब व्हाट? It behave as a wave as well as behave as a particle. So light has a dual nature. Okay. और yes, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट हो गया. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज बोर्स एटॉमिक. देखो हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया था, लेकिन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या थे? लिमिटेशंस थे. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशंस थे. तो एक बार मैं रिवाइज करूंगा क्या लिमिटेशंस थे और फिर हम लोग नए मॉडल के साथ स्टार्ट करेंगे. तो यह आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सॉरी डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है आपको इसमें? ठीक है, नहीं तो आई जस्ट गो फॉर नेक्स्ट नाउ. 1 minute. Yes, actually we have to go for the next model. That is next model is बोर्स एटॉमिक मॉडल. बट बिफोर दैट विल सी कि हमारे रुदरफोर्ड मॉडल में क्या लिमिटेशंस थे, तो हमें वहां से पता चलेगा कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है. मतलब आपको सबको अगर रिपीट हियर द लिमिटेशंस या कोई मुझे बोल सकता है कि रुदरफोर्ड मॉडल में लिमिटेशंस क्या था? या कोई मुझे बोल सकता है स्टूडेंट कि रुदरफोर्ड मॉडल में लिमिटेशंस क्या थे? यस, दो लिमिटेशंस थे. रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या लिमिटेशंस थे? बोलो.
बोलो। ठीक है, नहीं तो आई जस्ट रिपीट हियर द लिमिटेशंस of Rutherford atomic model। मतलब लिमिटेशंस क्या था, तो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या था यहाँ पे, सबसे पहला लिमिटेशंस था हियर according to electromagnetic wave theory, according to electromagnetic wave theory, any accelerated or any accelerating accelerated electric charge चार्ज मतलब कैसे रहेगा, आइदर इट कैन बी ऑसिलेटिंग और इट कैन बी रिवॉल्विंग। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, एंड आइदर इट इज ऑसिलेटिंग मतलब ऑसिलेट्स हो रहा होगा या वो रिवॉल्विंग हो रहा, आइदर इट इज ऑसिलेटिंग और रिवॉल्विंग it radiate electromagnetic wave, it radiates what, electromagnetic wave मतलब like electromagnetic wave, and therefore the energy of an revolving electron should decrease continuously its orbit should become smaller and smaller, and finally electrons fall into the न्यूक्लियस। ऐसा हो, ये हमारा रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, रुदरफोर्ड का लिमिटेशंस था कि अगर हमारे मतलब अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ, अगर मतलब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ओके, और अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर एनी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर कोई भी हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो वो ऑसिलेट होगा मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेव जाएगा या रिवॉल्व करेगा, बट इट्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इससे क्या बाहर निकलेगा, एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर निकलेगा। तो एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आता था, लेकिन जब रिवॉल्व करने लगा
तो उसका एनर्जी एमिट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो जो सेकेंड ऑर्बिट उसका रहेगा वो स्मॉलर रहेगा. Like that, again second orbit will become smaller, second third will even become smaller, and finally slowly इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यहाँ पे आके गिरेगा. क्या कंसेप्ट था देखो कि मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर हमारे पास कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और अगर वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो क्या करेगा, इट रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी एमिट करेगा, इट विल एमिट एनर्जी, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा. और उसका एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड गो ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड देयरफॉर इट्स ऑर्बिट्स, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट्स है विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिरेगा. ये हमारे रदरफोर्ड का लिमिटेशंस था. करेक्ट. दूसरा बात क्या था, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, स्पेक्ट्रा निकाला. स्पेक्ट्रा मतलब कैसे कि अगर ये एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है, अगर ये एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, ऐसे अलग अलग लाइंस मिलेंगे. मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था, कंटिन्यूअस का मतलब क्यों हो रहा है कि देखो यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है और एमिट करके करके यहाँ पे ऐसा घूम रहा है. तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो, अगर हम लोग इसका स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो स्पेक्ट्रा कैसे आनी चाहिए था, कंटिन्यूअस आना चाहिए था. ओके, मतलब कंटिन्यूअस लाइंस आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 से कंटिन्यूअस लाइन आनी चाहिए. but when, so since electron is emitting energy continuously, the spectra of atom, spectra of energy should be कंटिन्यूअस. हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस मिलना. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब देखो, हमें प्रिज्म में से अगर लाइट पास करेंगे तो 7 कलर्स दिखाई देते एंड ऑल 7 कलर्स आर मर्ज इन, लाइक फॉर एग्जांपल वी से विबजॉर, BI B G Y O R. विबजॉर मतलब व्हाट, वायलेट कलर इज मर्ज इनटू indigo color is merged into blue color is merged into green color. तो सारे कलर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मर्ज होते हैं और हमें कंटिन्यूअस ऐसे कलर्स मिल जाते हैं. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो सिंस एनर्जी इज एमिटेड, सिंस इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, द स्पेक्ट्रा ऑफ एनर्जी शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस आना चाहिए था. बट द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा, जो हमें ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा किया गया था, बट द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइंस. द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट लाइंस मतलब कैसे, तो हमें स्पेक्ट्रा जो निकला जैसे एक लाइन मिला, फिर बीच में 2-3 लाइन मिसिंग थे, 2 सेकेंड लाइन मिला, थर्ड, ऐसे बीच में लाइंस मिले. मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस है, तो यहाँ पे हमें कितने लाइंस मिले, 1. ऐसे मतलब कम लाइंस मिले तो वी गॉट डिस्क्रीट, मतलब 1 2 3, सम लाइंस वी गॉट. डिस्क्रीट लाइंस मतलब सम लाइंस वी गॉट एंड सम लाइंस वर मिसिंग. तो ऐसा क्यों हो रहा था वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा है तो अगर मैं एनर्जी का स्पेक्ट्रा निकाल तो स्पेक्ट्रा मुझे कैसे मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए. बट द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा जो हमें मिला वो कैसा, डिस्क्रीट लाइंस था. डिस्क्रीट लाइन मतलब एक लाइन बीच में कुछ नहीं, फिर एक लाइन एक बीच में, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ पे ऐसा हो कि वॉयलेट कलर मिला, बाद में ग्रीन कलर मिला, बाद में ग्रीन के बाद ऑरेंज मिला और बाद में रेड. बीच के कलर्स तो मिले ही नहीं. तो ऐसे अलग अलग, मतलब बीच के कलर मिसिंग क्यों थे,
ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर, ये रुदरफोर्ड के जो लिमिटेशंस थे उस लिमिटेशंस को किसने करेक्ट कर दिया, बोर्स ने। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे द नेक्स्ट कंसेप्ट विल गो फॉर, दैट इज बोर्स, दैट इज कॉल्ड एज द नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसमें काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कवर करेंगे, दैट इज नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोर। तो सबसे पहले इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, देखो ये मॉडल का मतलब या इस मॉडल का, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल, ये जो मॉडल हमारा है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन like species containing only one electron। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये जो हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जो एटम हाइड्रोजन की तरह है लेकिन उनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 1। तो बेसिकली एक बात ध्यान में रखना कि हमारा बोर्स मॉडल जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जो एटम हाइड्रोजन की तरह है लेकिन उनके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर and for species containing only 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए एप्लीकेबल, मतलब सारे एटम्स के लिए, वो पे वापस किसके लिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिनके पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस बोर्स मॉडल इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर विच एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज which contains only 1 electron, which contains only 1 electron, correct। अभी हमें देखना है कि postulates of Bohr's theory, so here we can say postulates of Bohr's theory, मतलब बोर्स ने क्या क्या पॉइंट या क्या क्या पॉइंट प्रपोज किए थे उसे हम क्या बोलते हैं, पॉस्टुलेट्स, त्यांचे सिद्धांत म्हणजे त्यांनी काय काय मतं मांडली होती। द पॉस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स थेरी, बोर्सचे काय काय पॉइंट होते, द पॉस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स थेरी, द फर्स्ट पॉइंट इज atom has small heavy positively charged center called as न्यूक्लियस। मतलब ये रुदरफोर्ड में बोला था कि हर एक एटम जो रहेगा, एटम में क्या रहेगा, स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। तो हर एक एटम के सेंटर में, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो हर एक एटम के सेंटर में क्या रहेगा, हेवी मतलब पूरा ऑक्यूपाइड, हेवी पॉजिटिवली चार्ज, और इनका चार्ज कैसे रहेगा, पॉजिटिव। तो मतलब पहले तो कैसे रहेगा, हेवी रहेगा, heavy Q because nucleus contains protons and neutron, and because the number of protons are neutron more, it is called as a heavy, so heavy and it has got positive charge nucleus at
द सेंटर। मतलब ये रुदरफोर्ड ने पॉइंट भी बोला था, लेकिन वापस इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी एटम लोगे तो हर एक एटम के सेंटर में क्या होगा, हेवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, बोर्स ने क्या प्रपोज किया था, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हमारे है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, लेकिन रिवॉल्व किस में करेगा, सर्क्यूलर पाथ्स में करेगा, सर्क्यूलर पाथ में करेगा। एंड हर एक सर्क्यूलर पाथ का रेडियस एंड एनर्जी कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन रिवॉल्व करते करते उसका एनर्जी, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रुदरफोर्ड, मतलब कि अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका पाथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, but every path will have the fixed radius and fixed energy, and these path, ये जो paths है, circular paths है, these circular paths are called orbits। इन circular paths को हम क्या बोल सकते हैं, orbits, or we call them as stationary state, or we call them as energy shell, or we call them as allowed, और ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, देन दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, देन वी आर हैविंग द सेकेंड ऑर्बिट, एंड देन वी आर हैविंग द थर्ड। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा। लेकिन जब तक ये इसका जो साइज है, ये साइज कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, मतलब साइज कैसा है, सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे घूमता रहेगा, लेकिन कौन से पाथ में घूमता रहेगा, सर्क्यूलर में। और जब तक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फिक्स और एनर्जी भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है तो इसका साइज, ऑर्बिट का साइज कम नहीं होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटिंग कर रहा है यहाँ पे उसका एनर्जी भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उसको दिए हुए ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और उसका एनर्जी भी फिक्स रहेगा। और इसीलिए ये जो हमारे सर्कुलर पाथ्स है, उन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। मतलब ना ये फर्स्ट ऑर्बिट, सो वी कैन जस्ट राइट हियर दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, or we can also call them as what, K, L, M, so on. So either we can call them as orbit as what, 1, 2, 3, 4 and etc., or we can denote by the which letter, K, L, M, N. So these circular paths are called as orbit. They are called as a stationary state. Stationary state क्यों, क्योंकि जब तक इस ऑर्बिट का साइज कम ज्यादा नहीं हो रहा है, साइज कांस्टेंट है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट। और एनर्जी शेल, एनर्जी शेल क्यों, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी भी कैसे रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट का है तो जब तक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया, एनर्जी शेल। ओके, so what is second point we have said,
द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेगा इन अ सर्क्यूलर पाथ, लेकिन कैसे रिवॉल्व करेगा, सर्क्यूलर, मतलब स्पाइरल नहीं करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरल, साइज कम कम होते जाना और फाइनली न्यूक्लियस में आके गिरना, स्पाइरल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ फॉलो करेगा, पहली बात तो सर्क्यूलर पाथ फॉलो करेगा, सर्क्यूलर पाथ, और हर एक सर्कुलर पाथ का क्या रहेगा, फिक्स रेडियस रहेगा, और फिक्स्ड क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। और इस सर्कुलर पाथ्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उनका साइज कांस्टेंट है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेशनरी स्टेट। और हर एक ऑर्बिट का एनर्जी भी कांस्टेंट है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी शेल। ओके, so we can call them as the orbits, we can call them as stationary state, or we can call them as the energy shell. तो हमने दो पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट क्या था, every atom has a small heavy positive charge center called as the nucleus, मतलब हर एक एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हेवी न्यूक्लियस है, करेक्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट हाउ, इन सर्कुलर पाथ्स ओनली, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करेंगे, और एवरी सर्कुलर पाथ हैज द फिक्स्ड रेडियस एंड द फिक्स्ड एनर्जी, and these circular paths are called as the orbit, or we call them as the stationary state, or we call them as the energy shells. Okay, third point, we'll go for third point of the Bohr state. What is third point here? The electron can revolve only in those orbits. Electron can revolve only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h/2 pi। देखो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, मतलब अभी हम लोग क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द थर्ड ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मतलब कैसे ऑर्बिट में, मतलब कैसे उन्हें क्या बोला था, और क्लियर देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा या सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, यहाँ पे बीच में किधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्लियर क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्पेस इलेक्ट्रॉन नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, बीच में कुछ नहीं रहेगा। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट में, बीच में कुछ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में, मतलब बीच बीच के जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, सब जगह रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट where its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. Its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग देखूंगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मतलब इतना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स की बात नहीं कर रहे तो, लेकिन थोड़ा एक दिस कंसेप्ट देखो। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये रेडियस हुआ, दिस इज कॉल्ड एज आर। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स हर बार उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
ओके, ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू r इज a radius and cross product of velocity, रेडियस और ए वेलोसिटी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस। फिजिक्स में शायद आप डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, लेकिन तो भी m is the mass of electron, r is the radius of the orbit and v is the velocity. ओके, इज इक्वल टू, अगर मैं इसे करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, m और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, v इंटू आर साइन 90, बिकॉज इनके दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, 1, सो इनटू 1, सो एंगुलर मोमेंटम क्या मिला, mvr। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, mvr, और उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, n h/2π। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, mvr। देखो mvr, m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of orbit, angular moment of electron is equal to what, n h/2π। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हम लोग बाद में इसे यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी घूमेगा कि जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का मतलब क्या होगा, मतलब अगर हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n, मतलब n का मतलब क्या हुआ कि n स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4, इंटीजर नंबर, इंटीजर, तो यहाँ पे 1 h/2π। मतलब अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम h/2π रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, या हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना रहेगा, 2h/2π, तो रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे रिवॉल्व करना है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 3h/2π। मतलब हर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/2π या 2h/2π या 3h/3π, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी रिवॉल्व नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर इक्वल, देखो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो कितना, कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब n का वैल्यू क्या लोगे आप, 1 2 3 4। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है तो फर्स्ट में रिवॉल्व करेगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π है तो सेकंड में रिवॉल्व करेगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/3π है तो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब उन्हें क्या बोलना है कि इलेक्ट्रॉन सब जगह ऑक्यूपाई नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर हमें सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब कैसे, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियस है तो कोई बोलेगा इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से यहाँ इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर हमें बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब एक अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। H का मतलब क्या हुआ, प्लैंक्स कांस्टेंट। H का मतलब क्या हुआ, H we all know, I'll just write down the meaning of all that term, लेकिन H is called as a Planck's constant, where M is called as the mass of electron, V is called as the velocity of electron. I'll explain the meaning, I'll write down the meaning of all that term. तो उन्हें क्या बोलना है, मतलब यहाँ इस कंसेप्ट में क्या हमारा पॉइंट क्या था, देखो कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, मतलब हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन वो कहीं पे भी रिवॉल्व करेगा क्या, कि जिधर जगह मिला घूमेगा नहीं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और अगर मैंने इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट कर दिया तो इसका वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻24 आता है, 34 आता है, लेकिन इसका जरूरत हमने बाद में करेंगे कैलकुलेशन। तो हमें क्या बोलना है कि इलेक्ट्रॉन सब जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर आएगा h/2 पाई तो फर्स्ट में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई, मतलब 2 कैंसिल होगा तो h/पाई आएगा तो सेकंड में रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे n इक्वल टू 3। मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन हर जगह पाया नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा। दैट दे वांट टू से, मतलब हियर इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा, h/2 पाई पे मिलेगा, और 2h/2 पाई पे बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब इधर रहेगा इधर रहेगा, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं नोट लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग एवरीवेयर। इलेक्ट्रॉन हर जगह पाया नहीं जा रहा है, एक डेफिनेट ऑर्बिट पे ही मतलब हमें मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन आपल्याला एका पर्टिक्युलर ऑर्बिटला मिळतो, सगळ्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन आहे का, नाही। तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग एवरीवेयर। ओके ओके, 1 मिनट। तो ये हुआ, आई जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ऑल दिस टर्म। So we all know that m is called as the mass of electron, v is called as the velocity of electron, r is called as the radius of orbit, okay, h is called as the Planck's constant, और यहाँ पे n इंटीजर है और पाई अपना मैथ्स का कांस्टेंट है 3.14 या 22/7। तो n is the integer, n can have the values like 1 2 3 4 and so on, correct? तो ये ओके तो ओके सो 1 मिनट। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह ही ऑक्यूपाई करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई विल गो फॉर द फोर्थ वन। The energy of an electron in the orbit, energy of an electron in the orbit does not change with time. Okay, energy of electron in the orbit does not change with the time. This means that the energy of electron in a particular orbit remains constant. Okay, मतलब energy of the electron in the orbit does not change with the time. मतलब for example, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है n इक्वल टू 3. So what I want to say here, the energy of the electron in the orbit does not change with the time. मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहेगा, E1. तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा रहेगा उसका एनर्जी E1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना रहेगा, E2.
तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी कितना रहेगा, E2 ही रहेगा, वो कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना रहेगा, E3 रहेगा, डिक्रीज भी नहीं होगा और इंक्रीज भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस मीन्स दैट the energy of the electron in the particular orbit remains constant। अभी हमें देखना है वो क्यों चेंज नहीं होता, उसके बारे में देखना है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक उसको दिए हुए पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई राइट हियर, द फिफ्थ। मतलब एनर्जी कांस्टेंट क्यों है वो हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। व्हाइल रिवॉल्विंग of electron in fixed orbit, while revolving of electron in the fixed orbit, electrostatic force provides centripetal force। देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्लियर करेगा। वाइल रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहिए, लेकिन अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अभी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हो रहा है मालूम है, कि अगर हम लोगों ने एक धागा लिया, एक थ्रेड ले लिया और अगर वो थ्रेड को एक स्टोन बांध दिया, स्टोन, और अगर हमने स्टोन ऐसा घुमाते रहेंगे तो, लेकिन थ्रेड बांधने के कारण स्टोन दूर चला जाएगा क्या, नहीं, स्टोन घूमते रहेगा लेकिन स्टोन दूर भी नहीं चला जाएगा और स्टोन हमारे नजदीक भी नहीं आएगा, वो कंटिन्यू, मतलब अगर इसको मैंने इससे यहाँ पे स्टोन धागा बांधा और अगर स्टोन घूमते रहेगा तो जैसे मैं यहाँ पे घुमाते रहूंगा स्टोन घूमते रहेगा, जो स्टोन है वो नजदीक भी नहीं आएगा दूर भी नहीं जाएगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रुदरफोर्ड का लिमिटेशन था ना, रुदरफोर्ड ने, मतलब रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिर रहा था, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूमता रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं आएगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, मतलब, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, एक मिनट, सुन पेन खत्म हुआ है, पेन,
electrostatic force of attraction between oppositely charged particle, or electrostatic force of attraction are also called as what? Electrostatic force of attraction is also called as the Coulombic force of, is also called as the Coulombic force of attraction. Okay, electrostatic force of attraction is also called as what? Coulombic force of attraction. So what is electrostatic force of attraction? यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? अगर आपने एक अपने हाथ में धागा लिया, उसको अगर पत्थर बांध दिया, स्टोन बांध दिया, और अगर घुमाते रहोगे तो स्टोन दूर नहीं जाएगा, क्योंकि स्टोन को आप अट्रैक्ट करो लेकिन आपके पास भी नहीं आ रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. करेक्ट. और हमें एक यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा. ओके, 1 मिनट. तो ये जो पॉइंट था, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा था. ओके. ओके, यहाँ पे उन्होंने एक मिला, इक्वेशन मिला. देखो यहाँ पे वही पॉइंट पे सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K into Q1 into Q2 upon R square. Q1 मतलब charge of the first particle and charge of the second particle. So electrostatic force of attraction is equal to what? K Q1 into Q2 upon R square. K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. आप फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ो. K का वैल्यू क्या होता है? K is a constant. What is the value of the constant? 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का मतलब कैसे मालूम है? हम लोग अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, और डेल्टा के बाद जो ग्रीक लेटर आता है उसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं. एप्सिलॉन मतलब उसका सिंबल ई है, ये सिंबल है उसका एप्सिलॉन. अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, और डेल्टा के बाद जैसे हमारे इंग्लिश लेटर्स है ABCDEFG, वैसे ग्रीक लेटर्स में क्या आता है? अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, और डेल्टा के बाद क्या आता है? एप्सिलॉन. तो ये एप्सिलॉन 0 है. तो K का जो वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर. अभी यहाँ पे हमें Q1 और Q2 का वैल्यू लिखना है. Q1 मतलब अगर मैंने बोला है कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q1 है. व्हाट इज Q1? चार्ज ऑन न्यूक्लियस. Q1 क्या रहेगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा? प्रोटॉन. प्रोटॉन के लिए सिंबल, चार्ज के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? E. और यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? Z. यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? Z. क्योंकि हमारे पास हमारा जितना एटॉमिक नंबर होता है, हमारा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? Z. और E मतलब चार्ज. E का मतलब क्या होगा? चार्ज. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ओके. बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये हमारा रहेगा Q2, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और चार्ज के लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? E. देखो चार्ज का सिंबल E है, लेकिन तुम अभी बोलेगे यहाँ पे Z क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि हमारा जो बोर्स थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन. तो तुम लोग बोलेंगे यहाँ अगर हमारा एटॉमिक नंबर Z रहेगा तो हमारे पास प्रोटॉन भी Z रहेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी Z रहेंगे. कि अगर मैंने बोला कि हमारा एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, लेकिन नहीं, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है
कि हमारा जो बोर कंसेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जब हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, लेकिन वो नेगेटिव होता है, और एक प्रोटॉन का चार्ज भी ई, लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन को, सब प्रोटॉन को साथ में कैलकुलेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे जेड ई। तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज जेड ई एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ई। हम लोग यहाँ पे उनका माइनस साइन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फॉर्मूला में 1/4πε0 Q1 is what, ZE, Q1 is ZE into Q2 is E upon R square. So that is what, electrostatic force of attraction is equal to 1/4πε0 ZE square upon R square. ZE square upon R square, ये हमारा एक इक्वेशन मिला। एट द सेम टाइम लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatics force of attraction is equal to centripetal force. Equal to what? Centripetal force. So what is electronic attraction force of attraction? 1/4πε0 ZE square अपॉन R स्क्वायर, एंड सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन R। ये आपको फिजिक्स में मालूम रहेगा या करोगे आप, मतलब ये चैप्टर आपके फिजिक्स में भी आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब 11th में आता है, तो वहां पे होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमारा इक्वेशन, जो इक्वेशन बना उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये बाद में हमें लगेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, और दूसरा फॉर्मूला क्या मिला हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, एज लॉन्ग एज, इसका ही मतलब एज, देयरफॉर वी कैन से हियर as long as electron remain in the orbit, these two forces are equal, and so it will not emit or absorb एनर्जी। मतलब जब तक हमारे दोनों फोर्स इक्वल है तब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको जो ऑर्बिट दिया रहेगा, सो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, दिस टू फोर्सेस आर इक्वल। तो इक्वल रहेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमता घूमता रहेगा, लेकिन इट विल नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ये हमारा कंसेप्ट था, करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों फोर्स जब तक इक्वल है तब तक वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, उस ऑर्बिट में से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी नहीं करेगा और बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा, करेक्ट। नाउ आई विल गो फॉर द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट ये लास्ट पॉइंट है। The electron can lose or electron can lose or gain energy if it change the energy level
और वी कैन से ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम ज्यादा हो सकता है कभी अगर उसने उसका एनर्जी लेवल चेंज किया तो। मतलब अभी हमने जस्ट पॉइंट में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब तक उसको दिए हुए ऑर्बिट में है, मतलब अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तब तक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक घूम रहा है, जब तक दोनों फोर्स इक्वल है, कौन से दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहेगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होते रहेगा, उसका एनर्जी भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन द इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम ज्यादा हो सकता है कभी इफ चेंजेस द एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। कभी होगा ये पॉसिबल हो, देखो, the electron can lose or gain the energy if it changes the energy level of orbit. That is, if electron can jumps from lower level to higher level, or from higher level टू लोअर लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज कभी होगा अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज, सिंपल बोला है कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी इफ इट चेंजेस द एनर्जी, अपना एनर्जी लेवल ऑर्बिट चेंज करेगा तो। और एनर्जी और ऑर्बिट चेंज कभी करेगा इफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, और इट कैन जंप फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो एनर्जी चेंज होगा। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1 है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1 है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर E1 को E2 में जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को E1 में E2 में जाना है, तो E1 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इधर चला जाएगा। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उसको दिए हुए ऑर्बिट में घूम रहा है, जब तक इलेक्ट्रॉन उसको दिए हुए ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी कांस्टेंट है। पर अगर इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने में यहाँ पे चला जाए। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ रहा है, तो E2 से E1 में आते समय क्या करेगा, इट विल लूज एनर्जी। यहाँ पे लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और हायर लेवल से लोअर लेवल में आने के लिए उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट हो रहा है क्या, नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तब तक वो कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो एनर्जी नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी चेंज कभी करेगा अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तब वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो एनर्जी चेंज करेगा। मतलब एनर्जी चेंज विल ऑकर इफ इलेक्ट्रॉन चेंज फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल। energy level change in the energy can occur if electron can jump from one energy level to another energy level। और यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि अगर आप जो रुदरफोर्ड को जो स्पेक्ट्रा मिला था, स्पेक्ट्रा में उन्हें क्या मिले थे, ऐसे लाइंस मिले थे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर, ऐसे अलग अलग लाइंस बीच बीच में। मतलब फॉर एग्जांपल वायलेट, ब्लू, GR, ऐसे अलग अलग लाइन मिले थे, करेक्ट। तो उनको सारे लाइंस मिले के नहीं, बीच बीच के लाइंस क्यों मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है। उसको जितना मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एनर्जी लेवल में जाना चाहिए तो उतना ही एनर्जी एमिट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड एनर्जी लेवल में जाना चाहिए तो उतना एनर्जी एमिट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, नहीं,
उसको जितना जरूरत है उतना ही एनर्जी एमिट करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज. इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग एनर्जी ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग ओनली द सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, और इसीलिए हम यहाँ पे सर्टेन कलर मिल रहे, ताकि कंटिन्यूस कलर नहीं मिल रहे. तो इसी तरह से बोर ने जो रुदरफोर्ड का कंसेप्ट था कि रुदरफोर्ड को क्या मिल रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा था, सारे कलर कंटिन्यूस नहीं मिल रहे थे, बीच बीच में कलर मिल रहे थे. तो ऐसे कलर क्यों मिल रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करे अपने ऑर्बिट में तब तक वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा. एनर्जी एमिट कभी करेगा अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो एमिट करेगा. लेकिन हायर लेवल में भी कैसा, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए तो एक फिक्स एनर्जी एमिट करेगा, अगर उसको यहाँ से थर्ड ऑर्बिट में जाना चाहिए तो एक फिक्स एनर्जी एमिट करेगा. तो वही कलर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे और कंटिन्यूस कलर हमें दिखाई नहीं दे. तो इस पॉइंट के साथ बोर ने रुदरफोर्ड का सेकेंड पॉइंट जो स्पेक्ट्रा का था वो भी क्लियर कर दिया. करेक्ट. सो इसीलिए मतलब व्हाट एनर्जी, सो दिस वाज able to explain the why the Rutherford was getting the discrete line. So what I want to say, as long as electron remain in the particular orbit, its energy remains the constant. But electron can emit the energy or it can be absorb the energy if electron can jump from the lower energy level to higher energy level, or other way, that is electron. And ये point explain कर सका कि why the Bohr was getting the Rutherford was getting discrete spectra. तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का यहाँ पे हमें मिल गया. करेक्ट. तो हमने बोर्स के पोस्टुलेट किए, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने बोर के क्या क्या पोस्टुलेट्स किए हैं. यस, सबसे पहले हमारा पोस्टुलेट्स क्या था, एटम हैज अ स्मॉल, एवरी एटम हैज अ स्मॉल heavy positively charged center called as a nucleus. What is second point? Electron revolve around the nucleus in a circular path. The गोल गोल घूमते रहेंगे, and every circular path has a fixed radius and fixed energy. Orbit का radius और energy change नहीं होगा. And this fixed orbit with the fixed radius and energy are called as the orbits, or called as the stationary state, or called as the energy shell. Third point उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करेगा, जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. मतलब अगर उनका एंगुलर मोमेंटम रहेगा h अपॉन 2π तो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अगर एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2π तो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और अगर उनका एंगुलर मोमेंटम 3h अपॉन 2π तो थर्ड में रिवॉल्व करेगा. फोर्थ पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने, the energy of the electron in the orbit does not change with the time. मतलब it remains constant as long as electron revolving in the particular orbit. और इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में मतलब जो एटम के न्यूक्लियस और इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which is equal to the centripetal force, and therefore electron revolve in the particular orbit. करेक्ट. और उसके बाद 6 पॉइंट क्या किया था हम लोगों ने, yes, electron can lose or gain energy if it changes the energy level of the orbit. मतलब अगर अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज. तो इससे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन can emit or absorb fixed amount of energy. Electron can emit or absorb fixed amount of energy, and therefore the discrete lines were observed in hydrogen, in hydrogen spectrum. Yes, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में और दे देंगे. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे हमारे बोर्स के पोस्टुलेट्स हो गए. अभी हमें बोर्स इक्वेशन को यूज करके
एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है, हमें बोर कैलकुलेशन करके एटम का वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट करना है. बट दैट मतलब एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बोर्स थ्योरी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बोर्स थ्योरी विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के पार्ट के ऊपर आपको कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टी है क्या, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. आज के पार्ट के ऊपर जो अपना है उसके ऊपर कुछ. अब आज हमने मेन पार्ट क्या किया कि बोर्स थ्योरी किया मैंने और बोर्स के पोस्टुलेट्स करके. उसमें कोई डाउट है आपको तो बोल दो.